Good morning, students. Today I'll tell you meaning of commercial bank. A commercial bank is a financial institution which accepts deposits for the general public and extends loans for investment with the aim of earning profit. कमर्शियल बैंक का मेनली क्या फंक्शन होता है कि वो कॉमन पब्लिक से डिपॉजिट्स लेता है और उन्हीं डिपॉजिट्स में से प्रॉफिट अर्न करके लोन्स आगे प्रोवाइड करता है पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए. सो मेन कमर्शियल बैंक के दो फंक्शन हो गए, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड टू एडवांस लोन्स. सो कमर्शियल बैंक आर प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशंस, प्रॉफिट अर्न करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं. दे डू बैंकिंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट. सो main functions of commercial banks are acceptance of deposits. Deposits are of three types, two types, demand deposits and term deposits. Advancing loans, discounting bills of exchange, overdraft facility, agency functions. So many functions commercial banks perform, but we have to read in detail the functions of central bank. So first of all we should know what's the meaning of a central bank. The central bank is the apex institution of monetary and banking system of a country. All institutions which deal in money constitute a monetary system. जितने भी इंस्टीट्यूशन मनी को डील करते हैं, मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं, दे ऑल फॉर्म अ मॉनेटरी सिस्टम. एंड RBI is our central bank, which is an apex, means topmost supreme institution. It organizes, supervises, regulates and develops the monetary system of the country. And central bank have been established in all financially developed countries and they are known by different names in different countries. In India it is RBI, Reserve Bank of India, which was established in 1935. And previously it was a shareholders bank and it was nationalized on 1st January 1949, and its main function, its primary role is to control, supervise, regulate and organize the financial and monetary system of economy. So we'll read in detail now functions of central bank. First and supermost, most important function is issue of currency and or bank of issue. So students, in exams only one function will come to explain for 3 or 4 marks. So all the functions you have to read in detail. What is the meaning of issue of currency or bank of issue function? The central bank is given the monopoly of issuing currency in order to secure control over volume of currency and credit. अकेला सोल अथॉरिटी है RBI के पास. ऐसा क्यों है? ताकि पूरे कंट्री में एक प्रॉपर प्रपोर्शन में, एक प्रॉपर बैलेंस में क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल किया जा सके. एंड सेंट्रल बैंक जो करेंसी इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इट वाज टोल्ड ऑन येस्टरडे ऑल्सो दैट इट मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 crores and out of which 115 crore is in form of gold and rest 85 crore is in form of foreign securities. And keeping this reserve, it can issue any amount of currency. It is the minimum reserve. Second main function is banker to government. जैसे सभी कमर्शियल बैंक्स पब्लिक के लिए बैंकर्स का काम करते हैं, ऐसे RBI गवर्नमेंट के बैंक के रूप में काम करता है. तो ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बैंकर टू गवर्नमेंट. सेंट्रल बैंक फंक्शंस एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट लाइक कमर्शियल बैंक्स आर टू पब्लिक. So it accepts deposits from the government and gives loan to the government. It maintains the accounts of the government, carries out all banking functions of the government. It accepts receipts and makes payment on behalf of the government. Central bank carries out exchange, remittance and other banking operations on behalf of the government. And central bank can borrow any amount of money. Central government can borrow any amount of money from RBI by selling its rupee securities to the latter. अपनी securities को सेल करके
जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई से लोन ले सकती है। नेक्स्ट इज़ बैंकर्स बैंक। जैसे कमर्शियल बैंक पब्लिक का बैंक है, इसी तरह से सभी बैंकों का बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। देयर आर यूजुअली हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स, commercial banks in a country, and there should be some agency to regulate all these banks in a uniform way for their proper functioning. Some important agency should be there, so this duty is discharged by the central bank. First, it is custodian of their cash reserves. Banks of the country are required to keep a certain percentage of their deposits with the central bank. In this way, central bank is the ultimate holder of the cash reserves of commercial bank. कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स होते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज, एक सर्टेन रेशियो आरबीआई में जमा कराना होता है रेगुलरली, दैट इज़ नोन एज CRR, कैश रिजर्व रेशियो. सेकेंड फंक्शन, सेंट्रल बैंक इज़ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट व्हेन बैंक्स आर शॉर्ट ऑफ फंड्स. जब बैंकों के पास, किसी भी कमर्शियल बैंक के पास फंड शॉर्ट हो जाते हैं और उनको अपना फंक्शन करना भी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी इमरजेंसी के टाइम में आरबीआई उनकी ट्रेड बिल्स को डिस्काउंट करके उनको दोबारा से रिसॉर्ट करता है. लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट कहलाता है वो, कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा. तो जब कोई बैंक डूबने के कगार पर होता है तो उसको ये उनके बिल्स रीडिस्काउंट करके उनको दोबारा से स्ट्रेंथ देता है ताकि वो बैंकिंग सिस्टम को फेल होने से बचा सके. नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस फंक्शन. तो ये भी बैंकर्स बैंक के रूप में वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन करता है. इट्स अ बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, सेटलमेंट्स एंड ट्रांसफर्स. इट्स मॉरल परsuasion इज़ यूजुअली वेरी इफेक्टिव. तो कभी जब कमर्शियल बैंक्स को कोई गाइडलाइन देनी होती है आरबीआई ने, तो वो मॉरली उनको परसुएड करता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए. In this way, it functions as a banker's bank. Next function is controller of credit and money supply. कंट्री के अंदर कितना क्रेडिट बांटना है, कितना क्रेडिट कंट्रोल करना है. कंट्री में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशन, आरबीआई कंट्रोल्स द क्रेडिट इन द कंट्री एंड इट हैज़ मैनी इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल इट, लाइक रेपो रेट. Repo rate is the rate of interest at which central bank lends to the commercial banks. और जब इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई जो है रेपो रेट को बढ़ा देता है. जब कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से लोन एक्सपेंसिव मिलेंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेंगे, तो वो आगे से पब्लिक को भी एक्सपेंसिव देंगे, हाई रेट पर देंगे. तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा लोन्स लेना डिस्करेज होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा. सेकेंड टूल इज़ ओपन बैंक operations. These refer to buying and selling of government securities. कि अगर कंट्री में इन्फ्लेशन होता है तो तब आरबीआई जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं उनको सेल आउट करता है. सेल करने का मतलब है कि उसको कमर्शियल बैंक्स परचेज करते हैं और मनी का फ्लो कमर्शियल बैंक से आरबीआई के पास हो जाता है. उनकी लेंडिंग पावर कम हो जाती है और वो कम फिर आगे से क्रेडिट देते हैं लोगों को. इससे क्या होता है, जब परचेजिंग पावर लोगों के पास कम जाती है तो इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन इन द कंट्री. CRR अभी आपको बताया कि सम पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑल द कमर्शियल बैंक्स हैव टू डिपॉजिट इन आरबीआई एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ CRR, कैश रिजर्व रेशियो. तो इन टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन इट इंक्रीजेस CRR. सेम वे है कि जब CRR बढ़ जाएगा तो अब सभी कमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का और बड़ा पार्ट और बड़ा शेयर आरबीआई के पास जमा कराना है. अब उनकी लैंडिंग कैपेसिटी इससे रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी और क्रेडिट कंट्रोल होगा. देन एक्सचेंज कंट्रोल. अनदर ड्यूटी ऑफ अ सेंट्रल बैंक इज़ टू सी द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी इज़ मेंटेन्ड. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक्स स्टेप्स टू कंट्रोल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ रुपी. हमारे करेंसी की दूसरे कंट्रीज़ की करेंसीज के साथ एक्सचेंज वैल्यू कम करनी है, बढ़ानी है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री. उसका पूरा कंट्रोल आरबीआई के हाथ में होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई. लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, इट इज़ जस्ट एक्सप्लेन्ड कि व्हेन एनी कमर्शियल बैंक इज़ शॉर्ट ऑफ फंड्स and
financial crisis is there, then RBI saves that commercial bank by providing loans against their securities and save bank from possible failure and banking system of a country. Custodian of foreign exchange reserve is this function is already explained कि फॉरेन एक्सचेंज का जितना भी रिजर्व होता है वो अपनी कस्टडी में आरबीआई रखता है, इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल करता है. क्लियरिंग हाउस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. सभी कमर्शियल बैंक्स एक दूसरे के अगेंस्ट अपने कस्टमर्स के लिए चेक्स इशू करते हैं. अब वो चेक्स अगर इंडिविजुअली सभी बैंक एक दूसरे के पास जाकर क्लियर कराने के लिए भेजेंगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो आरबीआई के पास क्योंकि सभी कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स होते हैं तो एट वन प्लेस इट क्लियर्स ऑल द चेक्स ऑफ ऑल द बैंक्स. तो ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा. सो इट हैज़ ऑल्सो बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. कंट्री में जितनी भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं उनको कंपाइल करना और पब्लिक के लिए उनको इशू करना, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक. सो वी हैव टू डिस्टिंग्विश ऑल्सो बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक. ऑफन इट इज़ आस्क्ड that what is the difference between central bank and commercial bank. So central bank is the apex bank in the money market and commercial bank is merely a unit in the banking system. Central bank, the primary aim is general public welfare and commercial bank general aim is to make profit. Central bank has the monopoly absolute right to issue the currency and commercial bank has not this authority. Central bank cannot deal with the public, commercial bank deals with the public. Central bank is a banker of government, commercial bank is not a banker to government. Central bank decides its monetary policy to realize economic stability in the country, but commercial bank has to play a secondary role, supplementary role and is regulated by the central bank. Central bank is custodian of nation's gold and foreign exchange reserves, but commercial bank does not perform such functions. So students, money and banking chapter is over, and make your notes with the help of your textbook and NCERT book and read them daily, revise them daily, only then you will be able to attempt board exams. That's all for today. Thank you.